إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ النحل رکوع نمبر 10 پڑھیں گے ہم۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے فضیلت دی بعضکم بعض تمہارے کو علی بعض بعض پر، پھر رزق میں۔ فما الذین فضلوا، تو نہیں ہیں وہ لوگ فضلوا جو فضیلت دیے گئے، پھر رزق فضیلت دیے گئے براد دی، ہرگز لوٹانے والے نہیں ہیں، رزقہم اپنا رزق، علی ما ملکت ایمانہم ان پر جو مالک بنے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ یعنی ان کے غلام، فہم پس وہ فیہ اس میں سواء برابر ہو جائیں، افبنعمت اللہ کیا پس اللہ کی نعمت کا یجحدون وہ سب انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دنیاوی ہمارے رہن سہن کی مثالیں دے کر توحید سمجھائی ہے۔ پیچھے بھی توحید کا ذکر تھا، جو پچھلا رکوع پڑھا اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ تھا، شہد کا، دودھ کا، جانوروں کا، بارش کا، اور اس سے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے توحید سمجھائی۔ اب یہاں اس رکوع میں بھی مختلف انداز کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ مزید اس کا جو ہے تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں، واللہ جعل، اور اللہ جعل بنایا اس نے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، کیا بنایا؟ ازواجن بیویاں، وجعل اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من ازواجکم تمہاری بیویوں سے، بنینا بہت سے بیٹے، وحفدتن اور پوتے، ورزقکم اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، افبالباطل کیا پس باطل پر یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا، ہم یکفرون وہ سب انکار کرتے ہیں، ویعبدون اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما ان کی جو لا یملک نہیں وہ سب اختیار رکھتے، لہم ان کے لیے، رزقاً کسی رزق کا، من السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، شیئاً کچھ بھی، ولا یستطیعون اور نہ وہ سب طاقت رکھتے ہیں، فلا تضربوا پس مت تم سب بیان کرو، للہ اللہ کے لیے، الامثال مثالیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، ضرب اللہ مثال بیان کی ہے اللہ نے، مثلا ایک مثال، عبدن ایک غلام کی، مملوکا کہ جو ملکیت ہے، جو غلام کسی کی ملکیت میں ہے، لا یقدر وہ نہیں قدرت رکھتا، علی شیء کسی چیز پر، ومن اور جو رزقناہ ہم نے رزق دیا اسے، منا اپنی طرف سے، رزقا حسنا اچھا رزق، فہو ینفق تو وہ خرچ کرتا ہے، منہ اس سے، سرا پوشیدہ، وجہرا اور ظاہری، حل یستویان کیا وہ سب برابر ہیں، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم بلکہ ان میں سے اکثر، لا یعلمون وہ سب نہیں جانتے، وضرب اللہ اور بیان کی اللہ نے، مثلا ایک مثال، رجلین دو آدمیوں کی، احدہما ان دونوں میں سے ایک، اب کم گنگا ہے، لا یقدر نہیں وہ قدرت رکھتا، علی شیء کسی چیز پر، وہو کل اور وہ بوجھ ہے، علی مولا اپنے مالک پر، اینما یوجہ جہاں کہیں وہ بھیجتا ہے اسے، لا یأتی بخیر نہیں وہ لاتا کسی بھلائی کو، حل یستویان کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں، وہ گنگا جو بوجھ ہے اپنے مالک پر وہ، اور اس کے مقابلے میں ومن یأمر وہ بندہ جو بولتا ہے اور حکم دیتا ہے عدل کا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، وہو علی صراط مستقیم اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے، توحید کی دعوت دے رہا ہے، سیدھے راستے کی دعوت دے رہا ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے توحید سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم میں دنیا میں رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو مالی طور پر معیشت کے حساب سے ایک جیسا نہیں بنایا، کسی کو زیادہ مال دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ دیکھیں نا، کئی دفعہ ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بھائی وہ بزنس مین ہے، کاروبار ہے، بہت اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا اس کا بھائی ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، اس کا کاروبار نہیں چلا، وہ بیچارہ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے،
ठीक है ना। और कई दफ़ा जो है इतना भी फ़र्क होता है कि एक हैं तो इंसान ना दोनों, एक इंसान वो करोड़ों में खेल रहा है और उसके मुकाबले में दूसरा जो है उसका गुलाम है, उसके मातहत वो काम करता है। पहले दौर में तो गुलाम हुआ करते थे ना, और अब जो है वर्कर होते हैं, काम करने वाले, उनकी तनख्वाह या उनके काम के साथ ही उनकी जो है रोज़गार जुड़ा होता है उनका। अल्लाह फरमाते हैं फज़्ज़ल बाज़कुम अला बाज़, अल्लाह ने तुम्हें जो रिस्क में फजीलत दी है, इस मिसाल को समझने के लिए है कि इंसान तो सब इंसान ही है ना, इंसानियत के एतबार से तो कोई बड़ा छोटा नहीं है ना, सब इंसान है। ये तो नहीं है ना कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो इंसानियत के आला दर्जे पर है, ये नहीं है। अखलाक और किरदार के एतबार से इंसानियत में चलो ऊंचे हो जाते हैं, लेकिन इस एतबार से तो सब इंसान ही है ना। अल्लाह फरमाते देखो हमने तुम्हें जो दुनिया में फजीलत दी, फमल लज़ीना, बस वो लोग फुज़िलू जो फजीलत दिए गए, क्या वो ऐसे हैं? फमल लज़ीना, तो नहीं है वो लोग जो फजीलत दिए गए, बिराद दी, हरगिज लौटाने वाले रिज़्क़, अपना रिज़्क़ उनको, मालकत ईमानुहुम, जो उनके मालिक बने हुए। ईमान दाएं हाथ के मालिक, इससे मुराद होता है गुलाम, कि जिनको हमने माल दिया, पैसा दिया, दौलत दी, हुकूमत और इक़्तिदार दिया, उनके जो गुलाम हैं, क्या ये मालिक अपना पैसा बराबर का बांट कर अपने गुलाम को दे देंगे? जबकि इंसानियत में तो दोनों बराबर हैं, ये इनको बराबर बांट के दे दें, ये कभी नहीं हो सकता। जब दे देंगे तो फिर तो बराबर हो जाएंगे ना। बल्कि कुरान में आता है दूसरी जगह पे, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर हम ये तकसीम जो है बराबर कर देते ना हर किसी को, तो फिर जमीन में फसाद होता। फिर जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो निज़ाम चलाया है, इस निज़ाम का हुस्न इसी में है। देखें ना, हर बंदे के पास पैसा हो तो मजदूरी कौन करेगा? जब मजदूरी कोई नहीं करेगा तो काम तो असल मजदूर करते हैं ना। तो ये कायनात को चलाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सिस्टम बनाया है, ये इसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कायनात का ही हुस्न है। और फिर इसी बात को समझाने के लिए जो तुम्हारे मुलाजिम हैं, जो तुम्हारे वर्कर हैं, जो तुम्हारे नौकर हैं, तुम कभी उनको अपने बराबर नहीं बनाते, या अपनी प्रॉपर्टी में से, अपने बैंक बैलेंस में से बराबर जितना आपके पास है उतना ही उनको दे दो कि तुम्हारे बराबर वो हो जाएं। कभी तुम ऐसा नहीं करते, लेकिन उसी अल्लाह की मखलूक में से अल्लाह के बराबर बना देते हो। अफ़ बिनिअमतिल्लाहि यजहदून, फिर अल्लाह की नेमत का इनकार करते हो। तुम बराबर हो के इंसानियत के दर्जे में बराबरी हो है तुम्हारी, लेकिन अपने माल में तुम अपने गुलाम को अपने बराबर नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तो सारे आजिज बंदे हैं, बेबस हैं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, फिर उन इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के बराबर क्यों बनाते हो? और फिर ये मिसाल क्यों देते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इख्तियार इनको दिए हुए हैं? तुम अपने इख्तियार अपने गुलाम को नहीं देते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इख्तियार अपने बंदों को कैसे दे दिए हैं? ठीक है ना। ये मिसाल से अल्लाह ताला ने तौहीद समझाई है। मजीद और अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का तज़किरा किया, जिस तरह पीछे भी था पिछले रुकू में, यहाँ भी है वल्लाहु जअल लकुम, और अल्लाह ताला ने बनाया तुम्हारे लिए, मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्हारे नफ्सों से तुम्हारी बीवियां बनाई हैं। ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, उसकी कुदरत और उसकी कारीगरी, इसमें निशानियां हैं। जिस तरह दूसरी जगह पर है ना सूरह रूम में कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने तुम्हारे नफ्सों से तुम्हारे लिए बीवियां बनाई, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनकी तरफ सुकून हासिल कर सको। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, उसने तुम्हारे दरमियान आपस में मवद्दत और मोहब्बत और शफकत रख दी है। इन्न फी ज़ालिका लाया, इसमें भी निशानियां हैं, सोचने और गौर करने का मकाम है कि किसने ये नारो मादा में इंटरेक्शन किसने रखा है, इतनी ज़बरदस्त कशिश और मोहब्बत और जज्बात ये किसने रख दिए हैं। ये भी अल्लाह की कुदरत है ना। इस कुदरत को पहचानो और इस पर शुक्र अदा करो, और इसमें जो सलाहियतें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, इसमें बेराह रवी का शिकार न हो जाओ। सही और जायज़ रास्ता और तरीका जो अल्लाह ने दिया है, उसी रास्ते पर चलो। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, वही रब है जिसने तुम्हारे लिए बीवियां बनाई। वजअल लकुम, और बनाया तुम्हारे लिए, मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारी बीवियों में से। बीवियों का फायदा एक तो दूसरी आयत में जो अभी बताया
کہ मोहब्बत, जिस्मानी सुकून, जहनी सुकून और बेटे अता किए तुम्हें, वहाफदतन, और बेटों से आगे पोते। हाफदन उसके कई माने मुफस्सिरीन ने की है कि ये हाफदा हाफिद की जमा है और एक हफीद की जमा है, कि ऐसे जो है पोते मुराद भी लिए हैं और बाज़ मुफस्सिरीन ने इससे बेटियां मुराद ली हैं, बाज़ ने बीवी की औलाद जो है उस वो तर्जमा भी किया है कि बीवी की औलाद, जो पहले शादी थी बीवी की, वहाँ से तलाक हो गई या शोहर फौत हो गया, बाद में आपने शादी की तो उसकी औलाद जो पहले से थी वो मुराद ली है। और बाज़ ने इससे जो है बेटियां मुराद ली, बाज़ ने इससे जो है वो बेटियों के शोहर, दामाद वो मुराद लिए हैं। तो सारे माने हो सकते हैं इससे कि वो सब अल्लाह ने बनाए हैं ना। बाज़ दफ़ा बेटे इतना फ़ायदा नहीं देते, इतना फर्माबरदार नहीं होते जितनी बेटियां फर्माबरदार होती हैं, और बाज़ दफ़ा अपनी औलाद इतनी फर्माबरदारी नहीं करती जितनी जो है बीवी की औलाद कर रही होती है ना। ये वाक़यात इस तरह के मौजूद हैं। और बाज़ दफ़ा अपने बेटे इतना इंसान के लिए फ़ायदे का और नफ़े का बायस नहीं होते जितना उसके जो है दामाद उसके लिए फ़ायदा मंद हो जाते हैं। हम देखें ना, हर किसी का अल्लाह ने एक मकाम रखा है। अब ये उसको इस हिसाब से ना देखें कि ये तो मेरा नहीं, ये तो फलां है, ये तो दूर का रिश्तेदार है, ये अपना है, ये पराया है, ऐसे नहीं। बल्कि जो भी जिससे फ़ायदा हासिल हो रहा है, अल्लाह ने किसी इंसान को बेमकसद नहीं बनाया। हर किसी का कोई ना कोई मकसद है, उससे जो फ़ायदा हासिल हो सकता है वो फ़ायदा हासिल करें उससे। तो शफ़क़त मोहब्बत से रहें। हर इंसान में कुछ खामियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं, ठीक है ना। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और उसने पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। रिज़्क़ का तज़किरा पिछले रुकू में था कि कई तरह के रिज़्क़ जो है, खजूरें, अंगूर और शहद, दूध, और फिर जो है बारिश का जिक्र किया जिससे ज़मीन की तमाम किस्म की नबातात जो है वो पैदा होती हैं, वो पीछे आया। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, उसने तुम्हें रिज़्क़ दिया। अब देखो, अल्लाह बनाने वाला तुम्हें, तुम्हारी बीवियों को बनाने वाला वो, तुम्हें सुकून मुहैया करने वाला वो, तुम्हें बेटे देने वाला वो, तुम्हें रिज़्क़ देने वाला, आसमान से बारिश बरसाने वाला, तुम्हारे जानवरों के लिए चारा पैदा करने वाला, जानवरों के पेटों से तुम्हें दूध खालिस अता करने वाला, तुम्हारे लिए एक पूरी मक्खी को पूरा एक कारखाना शहद का बना के तुम्हारे लिए इतनी जो है बेहतरीन जो है शहद मुहैया करने वाला जिसमें शिफा है, अंगूर और खजूरें तुम्हें देने वाला, ये सब कुछ सारी नेमतें उसकी हैं। फिर क्या है, अफबिल बातिल युमिनून, क्या फिर भी बातिल पर तुम ईमान लाते हो? फिर भी जब शुक्रिया की बारी आती है औरों का शुक्रिया अदा करते हो? बेटे वो दे, बीवियां उसने बनाई, मोहब्बत और प्यार और शफकत उसने तुम्हारे लिए उसने रखा, बेटे उसने दिए, पोते और पड़ोते उसने दिए, बेटियां उसने दी, ये सारी रहमतें और शफकतें उसने दी। अब जब शुक्रिया की बारी आती, कई लोग बेटों का नाम भी पीरा दिता रख रहे होते हैं। पीरा दिता, कोई बेटे का नाम जो है सालार बख्श, कोई मदार बख्श, कोई क्या सालार बख्श, जब फला कोई सालार पीर होगा उसने बख्शा है, नहीं उसने दिया है। बेटा रब दे, मां के पेट में वो पाले, परवरिश वो करे, एक हालत से दूसरी हालत से गुजार कर पूरा बच्चा बना के और फिर बाहर निकाल के उसको कुव्वत, ताकत, सलाहियत सब कुछ दे के इंसान कहे कि किसी और का करम हुआ है। ये कितना बड़ा शिर्क है अल्लाह के साथ और कितनी बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीन है। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे साथ शिर्क करेगा उसका ठिकाना जहन्नम है। फबिल बातिल युमिनून, क्या फिर भी तुम बातिल पर ईमान लाते हो? गैरों के, अब देखें ना, एक इंसान जिसने जहाज बनाया उसकी बड़ी तारीफें हैं, लेकिन जिसने जहाज बनाने वाले को अकल दी है, जिसने इंसान बनाया, कि जिस इंसान ने इस कायनात के कितने उसको इतनी ज़हानत दी कि वो आसमानों में जो है फिजाओं में उड़ सकता है, वो समंदरों में सफर कर सकता है, वो जो है पहाड़ों के गारों में जा सकता है, वो समंदरों के सीने जो है चीर सकता है, कितनी उस रब ने दी ना, उसकी कोई तारीफ नहीं, उसका कोई शुक्रिया नहीं, उसके सामने कोई झुकना नहीं। तो हमें चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के बन जाएं, अल्लाह की तौहीद को समझें। और खुसूसन उन लोगों को खिताब है जो लोग अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करने के बाद शुक्रिया के लिए गैरों के सामने, बुतों के सामने झुकते हैं, उनके सामने हाथ फैलाते हैं और अल्लाह की दी हुई नेमतों की निस्बत गैरों की तरफ करते हैं। और आज कई कलमा पढ़ने वाले दरबारों पर, मज़ारों पर, खानकाहों पर जब बेटा मिले जाके वहां पे देखें पका रहे होते हैं, बकरे छतरे वहां ज़िबा कर रहे होते हैं। देखें ना सुन्नत तरीका क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला आपको औलाद दे, बेटा हो तो 2 जाने, 2 बकरे ज़िबा करने हैं 7वें दिन, सुन्नत तरीका। बेटी हो तो 1 जान। हमारे अक्सर कई कलमा पढ़ने वाले 7वें दिन तो नहीं करेंगे,
11वें दिन जाके दावत करेंगे। अब 11वें दिन पूछो क्या है, तो जी 11वें वाले पीर साहब हैं ना, उनको राजी करना है। ये ना अफा बिल बातिल युमिनून, क्या बातिल को राजी करते हो? और सुन्नत तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा रब ने दिया, सुन्नत तरीके के मुताबिक तुम्हें करना चाहिए था, उस तरीके को छोड़ दिया और किसी पीर साहब को राजी करने में पड़ गए। अफा बिल बातिल युमिनून, क्या बातिल पर। और फिर देखें जिस तरह बैतुल्लाह के सामने जाके दुआएं मांगी जाती है ना, कई लोग कलमा पढ़ने वाले दरबारों और मज़ारों पर जाकर उसी तरह रो रो के वहां कब्रों के सामने झुक कर सजदे भी कर रहे होते हैं, दुआएं भी मांग रहे होते हैं। ये क्या है? अल्लाह के साथ शिरक है। वब निअमतिल्लाह, और अल्लाह की नेमतों का तुम इनकार करते हो कि दिया उसने। और फिर पीछे पढ़ा है ना, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब बेटा देता है तो ये लोग क्या करते हैं, फलम्मा तगशाहा हमलत हमलन खफीफा, कि जब खामद और बीवी आपस में मिलते हैं फिर हमल हो जाता है, फमर्रत बिही फलम्मा अस्क़लत, जब वो हमल भारी होता है, दाअव अल्लाह, फिर अल्लाह को पुकारते हैं खालिस अल्लाह के साथ जो है दुआ करते हुए, इबादत करते हुए। फिर जब अल्लाह बेटा दे देते हैं, फलम्मा, फिर जब अल्लाह देते हैं, जाअल लहु शुरका फीमा आताहुमा, अल्लाह फरमाते जब हम सही सालिम बच्चा अता कर देते हैं तो फिर फौरन शिरक करने लग जाते हैं। बेटा जब मिल जाए तो फिर शिरक। वह बेनियम, यही अल्लाह की नेमतों का कुफ्र है, ना शुक्री है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करना। वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, और वो सब इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा। देखे ना मुशरिकीन मक्का का जिक्र है, वो इबादत किन की करते थे? बुतों के सामने झुकते, जबकि अपने ताई वो कहते थे हम इबादत नहीं करते, मा नअबुदुहुम, हम इनकी इबादत नहीं करते, इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, मगर ये अल्लाह के करीब कर देते हैं हमें। अल्लाह ताला ने फरमाया वयअबुदूना, ये अल्लाह को छोड़कर इन बुतों के सामने हाथ फैलाना, सजदा करना, रुकू करना, मुश्किल के वक्त पुकारना, ये इबादत है। ये इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा। और वही काम आज कलमा पढ़ने वाला दरबार, मजार, खानकाह पे कर रहा है। और फिर इनको कहो तो ये भी वही कहते हैं हम इबादत थोड़ी करते हैं, ये तो हमें अल्लाह के करीब करते हैं। यही बात तो वो करते थे मुशरिकीन मक्का, जिनके बारे में कुरान ने कहा कि ये शिरक कर रहे हैं, अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं और बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करते हैं। मा ला यमलिकु लहुम रिज़्क़ा, जो नहीं इख्तियार रखते रिज़्क़ का, मिनस समावाति, आसमानों में, वल अर्ज़, और जमीन में, शयन, कुछ भी। ना आसमान से बारिश बरसाने की सलाहियत है, न जमीन से कुछ उगाने की सलाहियत है। जमीन भी सारी अल्लाह की, आसमान भी अल्लाह का, बारिशें भी उसके हुक्म पर आती हैं, जमीन भी उसके हुक्म से उगाती है। और ये सारे फल फूल, खेत खलियान, ये जानवर, ये सब चीजें उसने दी तुम्हें, तुम्हें भी उसने पैदा किया, बेटे भी उसने दिए, बीवियां भी उसने बनाई। उस पर ईमान लाओ, उसका शुक्रिया अदा करो। रिज़्क़म मिनस समावाति वल अर्ज़ शयअन वला यस्ततीऊन, और वो किसी चीज़ की ताकत नहीं रखते। अब देखें ना, लोग पुकारते भी उनको हैं जो फोत हो गए हैं, जो अब अपने बारे में भी उनको नहीं पता। मा यशऊरून अय्यान युबअसून, उनको नहीं पता कि कब उनको उठाया जाएगा, उनको नहीं पता कि हमारे ऊपर लोग क्या कर रहे हैं, कौन नजराने लेके आया है, कौन दुआ करने आया है, कौन, उनको क्या पता। वो तो अगले जहान में है ना, वो तो आलम बरज़ख में है, इस जहान से उनका राब्ता कट गया है। अल्लाह ताला हमारे कलमा पढ़ने वाले भाइयों को समझ दे, और ये समझ तभी आएगी जब कुरान की तरफ आएंगे, जब दीन को सीखेंगे, समझेंगे। और यही जहालत है ना, कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल दूर दीन से, इस्लाम से, शरीयत से। और फिर ज़हन में शैतान ने क्या बनाया कि फलां पीर साहब के दरबार पे जाओ, पीर साहब तुम्हें छुड़वा लेंगे क़यामत को। यही जहन में शैतान ने, यही मुशरिकीन मक्का के जहन में डाल के उनको भी इसी तरह गुमराह किया था, जिस तरह आज के कलमा पढ़ने वालों को उसने किया हुआ। वला यस्ततीऊन, और किसी किस्म की वो ताकत नहीं रखते। आगे क्या कहा, फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें ना बयान करो। अल्लाह के लिए वो कैसी मिसालें थी जो मुशरिकीन मक्का दिया करते थे? किन मिसालों से रोका गया? जब मुशरिकीन मक्का को यही कहा जाता ना, याबुदून मिन दूनिल्लाह, तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा इनकी, तो वो कहते, क्या कहते आगे से, अभी मैंने आयत पढ़ी, वो कहते माना अबुदुम, हम इबादत तो नहीं करते, हम तो अल्लाह लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हमें अल्लाह के करीब करते हैं। फिर वो मिसाल देते, जिस मिसाल से रोका गया ना, मिसाल क्या देते? आज भी कलमा पढ़ने वाला ये मिसाल देते हैं। वो मिसाल ये देते कि दुनिया में किसी बड़े से मिलना हो, किसी ओहदे वाले से, किसी सरदार से, आजकल के इस्लाम में किसी वजीर से, किसी वजीर आजम से मिलना हो, क्या डायरेक्ट पहुंच जाओगे?
डायरेक्ट तो नहीं जा सकता ना आम इंसान, पहले वास्ता ढूंढेगा, वसीला ढूंढेगा, पहले छोटे को मिलेगा, फिर वो बड़े तक ले जाएगा, फिर उस पर फिर आगे पहुंचेंगे ना। ऐसे डायरेक्ट कैसे पहुंच सकते हो? तो वो मिसालें ये देते कि हम ये जो बुजुर्ग हैं, नेक हस्तियां हैं, इन्होंने अल्लाह की बड़ी इबादतें की, अल्लाह के ये वली हैं, अल्लाह के करीबी हैं, हम इन तक पहुंचते हैं, फिर ये हमें अल्लाह तक पहुंचाते हैं। अल्लाह ने क्या कहा? ला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह करिए मिसालें मत बयान करो। ये तो जुल्म और ज्यादती है ना कि दुनिया के सरदार और वडेरे बड़े लोगों की सुनते हैं, छोटों की नहीं सुनते, वास्ते और वसीले के साथ सुनते हैं, सबकी नहीं सुन सकते। ये भी मोहताज है ना, सबकी इकट्ठे कैसे सुने? क्या अल्लाह ताला माज़अल्लाह मोहताज हैं, या माज़अल्लाह अल्लाह ताला जालिम है कि वो छोटों की, गुनाहगारों की नहीं सुनते, सिर्फ बड़ों की और नेकोकारों की सुनते हैं? वो भी अमीरों की सुने, दुनिया के बादशाह और सरदार भी अमीरों की सुने, तो फिर बाकी दुनिया के बादशाहों में और अल्लाह की बादशाह में फर्क क्या रहा? फर्क तो यही है ना कि दुनिया के बादशाह जालिम हैं, ये बड़ों के सुनते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं उनको, ये गरीबों के नहीं सुनते, उनको करीब नहीं आने देते। अल्लाह ताला तो सबकी सुनते हैं, हर आन सुनते हैं, हर जुबान में सुनते हैं, हर लम्हे सुनते हैं, और गरीबों की, गुनहगारों की और ज्यादा सुनते हैं। तो कभी कभी आते हैं ना, नेकोकार तो उनके अपने हैं, ठीक है ना। यही मिसाल वो दिया करते थे, जिस मिसाल से अल्लाह ने रोका, ला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, ये मिसालें अल्लाह के लिए ना बयान करो। अल्लाह दुनिया के हुक्मरानों की तरह जालिम नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के हुक्मरानों की तरह मोहताज नहीं है कि सबकी ना सुन सके, हर जुबान में ना सुन सके। एक ही लम्हे दुनिया का बादशाह, सरदार, वजीर तो एक लम्हे एक ही सुनेगा ना, 5-10 बंदे बोलने लग जाएं, उसको तो नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं। अल्लाह ताला सिर्फ 5-10 की नहीं, हर मखलूक की, करोड़ों अरबों मखलूक है, इंसानों की नहीं, जिन्नों की, हैवानों की, हशरातुल अर्ज़ की, समंदर की मछलियों की, पहाड़ों की गारों में, जंगलों में कितनी मखलूकात है अल्लाह की, और वो हर मखलूक अल्लाह की अपने खालिक को बुलाती है, अपने खालिक से अपना रिज्क मांगती है। अल्लाह ताला अपनी हर मखलूक की हर ज़रूरत को हर आन, हर लम्हे, हर जगह पर जहां भी वो मौजूद है वहां पहुंचाते हैं उसका रिज्क। तुम उस खालिक को जिसने ये सारी कायनात बिछाई, सारा निजाम चलाया, सबको खिलाया और पिलाया, सबके इंतजाम कर रहा है, उसको तुमने एक अदना सी मखलूक के साथ तशबीह दे दी, इसके साथ की मिसालें बयान करते हो। ला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए ऐसी मिसालें मत बयान किया करो। इन्नल्लाह यालम, अल्लाह ताला जानते हैं, वअंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते। ये दुनिया की जिनकी तुम मिसालें देते हो तो नहीं, उनको पता ही नहीं कि कौन मुझसे क्या लेना चाहता है। दुनिया के बादशाह को क्या पता मेरी रियाया में कौन मजलूम है, कौन क्या है, उसको तो पता ही नहीं। अल्लाह ताला तो हर लम्हे सुनते हैं, हर किसी की सुनते हैं, और हर किसी का ना भी वो बुलाए, वो ना बुलाए, फिर भी अल्लाह को पता है। एक बंदा गूंगा है, वो बुला ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह को पता है उसके दिल के ख्यालात क्या है, उसको किस चीज की जरूरत है, वो क्या चाहता है। अल्लाह ताला देते हैं उसको, सबकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, ठीक है ना। इन्नल्लाह यअलम व अंतुम ला तअलमून। आगे वो और मिसाल अल्लाह ताला ने दी है, पीछे भी एक मिसाल थी कि जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें फजीलत दी है रिस्क में, माल में, तो तुम अपने वर्कर को, अपने गुलाम को बराबर नहीं करना चाहते। अब एक और मिसाल दी, फरमाया ज़रबल्लाहु मसला, अल्लाह ने एक मिसाल बयान की, आब्दन, एक गुलाम की, ममलूका, जो किसी की मलकियत में है, एक गुलाम, ला यक़दिरु अला शै, वो कोई कुदरत नहीं रखता, वो जो कमाता है उसका मालिक ले जाता है। गुलाम पहले ऐसे ही हुआ करते थे ना, अब तो है ना मजदूरी करके वो खुद कमाते हैं, उनका अपना ही होता है पैसा जो मजदूरी की है उन्होंने, या तनख्वाह लेते हैं, वर्कर हैं तो काम करके वो ले जाते हैं ना। लेकिन गुलाम ये होते थे कि जिसकी वो मलकियत में है ना, जो वो मजदूरी करेगा पैसा उसका होगा, इसको खाने के लिए दे देगा शाम को, कुछ जिस तरह जानवरों के साथ सलूक किया जाता है। लेकिन इस्लाम ने आकर इसको जो है गुलामों को ख़त्म करने की तरफ तरगीब दिलाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुलामों को जो है पूरी दुनिया में अब कानून है कि कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता इंसान को। ला यक़दिर, वो कुछ कुदरत नहीं रखता, अला शैइन, किसी चीज़ पर उसको तो कोई इख्तियार ही नहीं, अपनी कमाई पर भी उसको कोई इख्तियार नहीं, अपनी जान पर भी इख्तियार नहीं, जहां उसका मालिक कहता है वो करता है। वमर रज़क़ना, और उसके मुकाबले में वो जिसको हमने रिज़्क दिया, जिसको हमने मालो दौलत दी, जिसको हमने सब कुछ दिया, मिन्ना, अपनी तरफ से, रिज़्क़न हसना, बहुत अच्छा रिज़्क, और फिर ये भी है वह युनफ़िक़, और वो उस अपने रिज़्क में से खर्च करने वाला है, सिर्रन व जहरा, पोशीदा भी और ज़ाहिरी भी, हल यस्तवियानी मसला, ये दोनों क्या बराबर हो सकते हैं? हालांकि दोनों देखने में तो इंसान हैं, आंखें उसकी भी, इसके भी, कान उसके भी, दिमाग उसका भी, सलाहियत देखने में बराबर हैं, लेकिन एक गुलाम है किसी का, उसको अपने जिस्म पर कोई इख्तियार नहीं, अपने पैसे पर, अपने माल पर कोई इख्तियार नहीं है,
اور اس کے مقابلے میں دوسرا انسان جس کو ہم نے رزق دیا ہے، فراوانی دی ہے، دولت دی ہے، اور وہ اپنی دولت خرچ بھی کرنے والا ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دو انسان ہو کے تھوڑا سا فرق ہم نے دے دیا، برابر نہیں ہو سکتے۔ خالق اور مخلوق کو تم نے برابر کر دیا، عقل نہیں ہے۔ ایک انسان میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ برابر نہیں ہے۔ مخلوق جس کو بنایا گیا، جس کو رزق کی ضرورت، جو محتاج، جس کی ہر چیز اللہ کی دی ہوئی، وہ جو رب کی بنائی ہوئی مخلوق، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا۔ جو اللہ کے در کا فقیر، اس کو تم نے خالق والے اختیارات دے دیے۔ تم نے کہا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھے ہیں، ہم ان سے مانگیں گے، یہ اللہ سے مانگ کر دیں گے ہمیں، اللہ ہمیں نہیں دیتا۔ اور یہ جب مانگے تو اللہ جو ہے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے اختیارات اب دیکھیں نا، کئی لوگوں نے اللہ کے اختیارات دیے کہ فلاں بیٹے دیتا ہے، فلاں بارشیں نازل کرتا ہے، فلاں مشکلیں ٹالتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار بانٹے ہوئے تھے نا۔ ہم کلمہ پڑھنے والے، آپ ذرا تصور کریں کہ کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس ہمارے ملک پاکستان میں کئی درباریں اور مزار ہیں۔ لاہور میں علی حجویری مشہور دربار، جس کو کیا کہتے ہیں، داتا دربار۔ اب داتا کون ہے؟ داتا کا معنی دینے والا، اور دینے والا رب ہے۔ اللہ کی صفت دے دی ایک عام انسان کو جو فوت ہو چکے ہیں۔ اب ٹھیک ہے وہ نیک تھے، ادب اور احترام اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی صفت دے دی اس کو۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیران پیر، غوث اعظم، معاذ اللہ، غوث تو اللہ ہیں، غوث اعظم۔ یہی ہے نا کہ برابر کر دیا تم نے۔ تم انسان جو اللہ نے رزق دیا، فراوانی دی، ایک خرچ کرتا ہے، دوسرا خرچ نہیں کرتا، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ کے ہاں بھی برابر نہیں ہے۔ جو خرچ کرتا ہے سرن و جہرا، دیکھیں نا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں غلام نہیں بنایا۔ اللہ نے ہمیں جو ہے اپنے رحمت سے جس بھی حال میں رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے سب کچھ دیا، صحت ہے، عافیت ہے، سب کچھ، جسم کام کرتا ہے، آنکھیں کام کرتی ہیں، ہم اچھا کما رہے ہیں، تو اس میں سے سرن و جہرا، پوشیدہ بھی اور ظاہری بھی خرچ کرتے رہیں اللہ کے راستے میں۔ ٹھیک ہے نا۔ جب اس پر ایک واقعہ مجھے بڑا بہترین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد آیا کہ وہ کس طرح پوشیدہ نیکیاں کیا کرتے تھے۔ ہم بھی پوشیدہ نیکیاں کریں، ایسی پوشیدہ نیکیاں کہ جب ان کا دور خلافت تھا نا، اس وقت کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرے، وہاں دیکھا ایک گھر ہے، اور اس گھر میں گئے، ایک بڑھیا تھی، آنکھوں سے نابینی، بڑھیا، کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، کوئی اس کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس بڑھیا سے پوچھا، اور گھر میں جو ہے وہ پانی کا جو ہے گھڑا، مٹکا، وہ بھی بھرا ہوا ہے، اور کھانا بھی اس کے پاس موجود ہے، اس کے گھر کی صفائی ستھرائی بھی ہوئی پڑی ہے۔ اور حضرت عمر نے پوچھا، بڑھیا آپ کے گھر کی کون صفائی ستھرائی کرتا ہے، کون آپ کا دیکھ بھال کرتا ہے؟ کہتی ہے میرا اپنا تو کوئی نہیں ہے، کئی عرصے سے میرا سب کچھ جو ہے، میرے اولاد بھی ختم ہو گئی، میں اکیلی ہوں، کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اللہ کا ایک نیک بندہ آتا ہے صبح صبح، وہ جھاڑو بھی دیتا ہے میرے گھر میں، وہ پانی بھی بھرتا ہے، وہ مجھے کھانا بھی لا کر دیتا ہے، اور پھر وہ چلا جاتا ہے، جو بھی میری ضرورت ہو وہ پوری کرتا ہے۔ آنکھوں سے نابینی، بڑھیا، جو محتاج، کوئی اس کا کمانے والا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون ہے، دیکھیں تو صحیح۔ دیکھا، اگلے دن کہنے لگے کہ میں آؤں گا، دیکھا کہ پہلے سے ہی کوئی بندہ کر کے چلا گیا ہے۔ پھر رات کے اندھیرے میں آئے، چھپ کر بیٹھے کہ دیکھوں کون اللہ کا ایسا نیک بندہ ہے جو یہ نیکی کرنے میں مجھ سے بھی آگے ہے۔ دیکھا تو حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے ہیں، انہوں نے جھاڑو دیا، نماز سے پہلے تہجد کے وقت اندھیرے میں آئے ہیں، جھاڑو دیا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے کہ امیر المومنین جھاڑو دے رہے ہیں۔ جھاڑو دیا، پانی بھر کے رکھا، اپنے کندھے پر پانی لادا، آ کر بڑھیا کا مٹکا بھرا، اور بڑھیا کو کھانا لا کے دیا، اور پھر چلے گئے۔ حضرت عمر اپنے دل میں کہنے لگے، ہر موقع پہ ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، جہاں بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ نیکیوں میں آگے نکلوں، ابو بکر مجھ سے آگے ہوتے ہیں۔ ایسی پوشیدہ نیکیاں ہم بھی کوئی کریں نا، ہم بھی کوئی کریں جن کا کسی کو پتہ نہ ہو، سرن و جہرا، اپنا مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، ہماری اولاد کو بھی پتہ نہ ہو، بیوی کو بھی پتہ نہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، صرف اس کو جس کو دیا ہے۔ بلکہ اس سے بھی ہم چھپ سکتے ہیں کہ جس کو دیا اس کو بھی پتہ نہ ہو، وہی نیکی کام آئے گی۔
क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे बंदों को जब कोई साया नहीं होगा अपने साए में जगह देंगे, जो खर्च करते वक्त दाएं हाथ से देते हैं बाएं हाथ को पता भी नहीं चलता। ठीक है ना। सिर्रन व जहरा हल यस्तवियानी मसला, कभी बराबर नहीं हो सकते। हल यस्तवियान, क्या वो बराबर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। वल अक्सरुहुम ला यअलमून, अक्सर लोग नहीं जानते। अक्सर लोग ये बात नहीं जानते, वो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं और अल्लाह की मखलूक को खालिक की सिफात अता कर देते हैं, या मखलूक को उठाकर अल्लाह के बराबर कर देते हैं। वज़रब अल्लाह ने और मिसाल बयान की, अल्लाह ने मिसाल बयान की अल्लाह ने रजुलैन, दो आदमियों की। पीछे भी दो बंदों की मिसाल थी। ठीक है, एक को अल्लाह ने रिज़्क दिया, दूसरे को गुलाम बनाया, दोनों बराबर नहीं हो सकते। अब एक और मिसाल, जो दो बंदे, अब गुलाम नहीं बल्कि क्या है, रजुलैन, दो बंदों की मिसाल। अहदुहुमा अबकम, उनमें से एक गूंगा है जो बोल ही नहीं सकता, और है क्या, वह हुआ कल्लुन, और वो बोझ है। कल्लुन, कल कहते हैं जिसका आगे पीछे कुछ ना हो। कलाला, जिस तरह पीछे हम पढ़ा है ना सूरह निसा में, कलाला, कलाला उसे कहते हैं जिसका वालिद भी ना हो वलद भी ना हो, यानी वालिदैन ऊपर से भी ना हो, औलाद भी ना हो, कोई रिश्तेदार ना हो, कलाला। ठीक है, और वो कलाला को कल्लुन कहा कि बोझ, वो भी बोझ होता है कि उसकी औलाद नहीं है, बूढ़ा हो गया है, जो भी उसका निगहदाश्त करने वाला है तो वो उसका बोझ है, उस पर बोझ है ना। ऐनमा युवज्जिह, जहां भी उसे वो भेजे, उसका मालिक उसे भेजे, ला याती बि खैर, वो कोई खैर नहीं लाता, वो बोल ही नहीं सकता। अब ऐसा बंदा जिसका कोई रिश्तेदार ना हो, कोई उसको संभालने वाला ना, और वो खुद भी कुछ ना करता हो, कोई काम नहीं करता, या वो बूढ़ा हो गया, अब कर ही कुछ नहीं सकता, कमाता नहीं है, वो बोझ है ना। उसको देखकर लोग बोझ महसूस करते हैं, करनी कतराते हैं उससे। किसी के घर 2 दिन के लिए मेहमान चला जाए तो वो तंग हो जाते हैं उससे कि क्या है, ये बोझ है, इसकी जो है मुशक्कत हमें उठानी पड़ेगी। ठीक है ना। तो एक वो बंदा जो गूंगा है, बोल नहीं सकता, अपना माफी ज़मीर बयान नहीं कर सकता, अब वो इशारे करता है, इशारे हर कोई तो नहीं समझ सकता, उसके इशारे नहीं समझ सकते कोई, और फिर उसको जहां भेजें वो बोलेगा ही नहीं, अपना माफी ज़मीर कैसे बयान करेगा, तो कोई खैर वो नहीं लाता। और दूसरे नंबर पर वो बंदा हुआ वमन, और वो यामुरु बिल अदल, जो बोलता भी है और बोलता भी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, अदल का हुक्म देता है, इंसाफ का हुक्म देता है, और वह अला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर है और सिरात मुस्तकीम की तरफ बुला रहा है। ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? ये भी तो दोनों इंसान हैं। अब 3 तरह की मिसालें अल्लाह ने दी हैं तौहीद समझाने के लिए कि देखो ये 3 तरह का दुनियावी फर्क जो है, दुनिया में एक तरफ गुलाम और आका दोनों बराबर नहीं हो सकते, सुनने वाला और न सुनने वाला बराबर, दूसरी जगह पर है ना, अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं हो सकते, दिन और रात बराबर नहीं हो सकते, धूप और छांव बराबर नहीं हो सकते। ठीक है ना। और यहां पर अब आखिर में जो है, बोलने वाला, हक की तरफ बुलाने वाला और गुंगा दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो तुम मखलूक को और खालिक को एक जैसा क्यों कर लेते हो? जो सिफात खालिक की हैं, बेटा देना, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, ये देना, बेटे देना, बेटियां देना, वो जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां अता कर देता है, वो जिसको चाहता है बांझ कर देता है, वो जिसको न देने पे आए कोई दे नहीं सकता, वो जिसको देने पे आ जाए कोई रोक नहीं सकता। तुम ये रब की सिफात गैरों को दे दी। अब देखें ना, कई लोग कहते हैं कि हमारे रिज़्क में बंदिश हो चुकी है, फलां मजार पे, दरबार पे पीर साहब जो है वो तावीज देते हैं, बंदिश रुक जाती है। अब क्या मतलब है इसका? माज़अल्लाह अल्लाह ताला ने रिज़्क बंद कर दिया, अब फलां पीर साहब खोल देंगे। रिज़्क देने का इख्तियार किसके पास है? जब आपने कहा कि रिज़्क में बंदिश है, कारोबार में बंदिश है, तो बंदिश किसने की है? या ये है, ये लफ्ज कहना ही गलत है। बंदिश हो गई है, फलां खोल देगा, बंदिश अल्लाह ने की। अगर अल्लाह नहीं देना चाहते, पूरी कायनात मिलकर आपको नहीं दे सकती। और फिर याद रखें, अल्लाह आपको देना चाहते हैं, पूरी कायनात के पीर और टोने करने वाले, जादू करने वाले, ये सब मिलकर आपका रिज़्क बंद नहीं कर सकते। या ये है ना, माज़अल्लाह अल्लाह ताला देना चाहते हैं, फलां ने बंद कर दिया, उसके इख्तियार में है रिज़्क। ऐसी चीजों से बच जाएं। अब यही सारा कुछ, इस तरह का अकीदा और नजरिया रखना कि अगर औलाद नहीं मिल रही,
फलां दरबार पे चले जाओ तो मिल जाएगी, अल्लाह नहीं देना चाहता फलां दे देगा। सब कुछ देने का इख्तियार, लेने का इख्तियार, इज्जत जिल्लत का मालिक, वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इज्जतें देने वाला वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जलील कर दे। बादशाही उसी के लिए है, हमेशा की बादशाही। और फिर याद रखें, अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ने मकाम दिया है, तो फिर उस इज्जत में, उस ताकत में, उस इक़्तिदार में अल्लाह को याद रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बगावत और नाफरमानी में अपने इक़्तिदार को कभी इस्तेमाल न करें। अल्लाह की दी हुई मोहलत को, अल्लाह की दी हुई ताकत को अल्लाह की नाफरमानी और बगावत में इस्तेमाल न करें। और सबसे बड़ी अल्लाह की बगावत यह है कि इंसान दूसरे इंसान को अल्लाह के बराबर कर दे और यह कहे कि अल्लाह मेरी सुनता नहीं, इनकी मोड़ता नहीं। ये सबसे बड़ा अल्लाह की बगावत है। और फिर मखलूक पर बगावतें करना, तो ये बादशाहतें हमेशा नहीं रहती, ऐसे सिर्फ पलटा होता है, हथेली जो है उल्टी होती है, मिनट लगता है, देर ही नहीं लगती। बल्कि एक तारीख में वाकया पढ़ा, सबक खत्म होने वाला है, ये वाकया मैं सुनाता हूं आपको, बड़ा जो है हमारे लिए इसमें सबक आमोज वाकया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मोहलत दी, जो इख्तिदार अगर दिया है, पैसा दिया है, चंद बंदों पर कंट्रोल दिया है, तो अपने आप को बड़ा ना समझें। वक्त बदलते देर नहीं लगती। बनु उमैया बादशाह थे, बनु उमैया का बड़ा अरसा रहा है बादशाहत का। उसके बाद जो जिस खानदान की हुकूमत आई है उनको कहते हैं बनु अब्बास। बनु उमैया का आखिरी खलीफा था मरवान बिन मोहम्मद, और उसके बाद जब इनकी सल्तनत को खत्म किया गया, बहुत बड़ी सल्तनत थी बनु उमैया की। आज भी करतबा में जाएं तो वहां बड़े बड़े उनकी सल्तनत, उनके शाही महल्लात आज भी मौजूद हैं, जिनको देख के अकल दंग रह जाती है कि कितने बड़ी अयाशियां की इन्होंने, कितने बड़े बड़े महल्लात बनाए। अल्लाह ने दुनिया में इख्तिदार दिया था, सब कुछ था, नौकर चाकर आगे पीछे लोग, और करोड़ों लोगों पर मुहित उनकी सल्तनत थी। लेकिन जब खत्म हुई, बनु अब्बास का दौर आया, और बनु अब्बास का पहला खलीफा था महदी बिन हादी। वो बैठा हुआ था अपने तख्त पे। एक बंदे ने आकर कहा, बादशाह सलामत, एक औरत, उसको देखा है, बाल उसके बिखरे हुए, मट्टी से अटे हुए, बदबू के भभोके उसके जिस्म से आ रहे थे, लेकिन बात करते हुए कुछ सयानी और दाना मालूम होती है, और वो कहती है मैंने बादशाह से मिलना है, मैंने खलीफा से मिलना है। बादशाह किसी से बात कर रहा था, उसने ऐसे कह दिया कि उसको ना मलका से मिलवा दो। अब उस खादिम ने मलका की तरफ भेज दिया उस औरत को। मलका के पास गई तो मलका का मसाज हो रहा था, आगे पीछे लाओ लश्कर और उसकी उस मलका की नौकरानियां और उसकी लोंडियां, वो सब बैठी थी। वो आकर सामने खड़ी हो गई और आकर कहने लगी, उस मलका का नाम लिया, क्या अतारिफीनी या फुलाना, उसका नाम लेकर, ए फुला, आप मुझे जानती हैं। अब मलका का जब नाम लिया तो उसकी जो है टूनी बदल गई कि मेरा नाम ले रही है, और ये मेरी लोंडियां क्या समझेगी कि इस तरह की हुलिया वाली, ये बोसीदा लिबास पहने हुए, बिखरे हुए बालों वाली, बदबू वाली इस औरत के साथ मेरा कोई ताल्लुक है? कहा मैं नहीं जानती। तो उसने अपना नाम लिया कि मैं फुला हूं, मैं फुला हूं। और वो औरत थी जो साबका बादशाह गुजरा था, खलीफा मरवान बिन मोहम्मद, उमैया, बनु उमैया का आखिरी खलीफा, वो उसकी बीवी थी, वो भी वक्त की मलका थी। उसने कहा मैं फला हूं, उस खलीफा की बीवी हूं, जिस तख्त पे तू बैठी है, इस तख्त पे मेरी नौकरानियां बैठा करती थी। आज जिस तख्त पे तू बैठी है, इस तख्त पे मेरी लोंडियां बैठा करती थी, मैं फला हूं। उसने ताली बजाई, मलका ने ताली बजाई, नौकरानियों को बाहर किया और कहा करीब आके बात करो मेरे साथ। कहा क्या हुआ, ये हालत क्यों बन गई? उसने हाथ बांधे, हाथ बांध के कहने लगी, मलका साहबा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, दर बदर की ठोकरें खा रही हूं। लेकिन आज मैं यहां आपके पास खाना मांगने नहीं आई, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, मैं खाना मांगने नहीं आई हूं, मेरे पास पहनने को भी कुछ नहीं है, मैं कपड़े मांगने नहीं आई हूं, मेरे पास रहने को भी कुछ नहीं है, मैं रहने के लिए घर मांगने नहीं आई हूं। लेकिन आज मैं आपके पास अपनी जिंदगी की भीख मांगने आई हूं कि मुझे कत्ल मत करना। होता है ना, जब पहले बादशाहों को खत्म किया जाता है तो जो दूसरे बादशाह आते हैं वो उनको फिर जिंदा नहीं रहने देते, वो कत्ल कर देते हैं उनको।
کہا میں زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہوں تجھ سے، مجھے قتل مت کرنا، باقی کچھ بھی نہیں مانگتی۔ ہم دیکھیں نا، اللہ نے سب کچھ دیا ہے ہمیں، اور پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو نافرمانی میں جو استعمال کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ یہ عبرت کے مقام بنا کے انہوں نے کیا کیا تھا، بنو امیہ نے لوگوں کی زمینوں اور جائیدادوں پہ قبضے کیے، ناجائز محلات بنائے، عیاشیوں میں رہے، اللہ نے دنیا میں دکھا دیا۔ وقت کی ملکہ جس کے آگے پیچھے لاؤ لشکر ہوتا تھا، جس تخت پہ اس کی لونڈیاں بیٹھا کرتی تھیں کھانے کو، وہ کہتی میرے اشارے پر سینکڑوں جوانوں کے سر کاٹ کے میرے قدموں میں رکھ دیا جاتے تھے۔ ایک وہ وقت تھا، آج وہ وقت ہے کہ میں آج اپنی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں تجھ سے۔ وہ وقت کی ملکہ اس سے کہتی ہے، اپنی خادموں کو بلایا کہ جاؤ اس کو نہلاؤ، اس کو شاہانہ لباس پہناؤ۔ اس کو نہلایا، شاہانہ لباس پہنایا، لباس پہنا، اتنے میں جو ہے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے کہا وہ عورت جو ملنے آئی تھی وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو ہے میں نے اس کو پناہ دی ہے، آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے، میں نے پناہ دے دی ہے۔ وہ سابقہ جو خلیفہ تھا جس کی حکومت کا اپنے تختہ الٹا ہے، وہ اس کی بیوی اپنے وقت کی شہزادی ہے، اپنے وقت کی ملکہ ہے، وہ تو فلاں ہے۔ بادشاہ بڑا غصے میں آیا کہ مار دینا چاہیے، لیکن بیوی نے کہا میں نے پناہ دے دی ہے۔ کہا چلو بلاؤ تو صحیح اس کو، ہم بھی اس سے بات کریں، ہم بھی اس سے بات کریں۔ جب نوکرانیاں گئیں، کافی دیر کے بعد واپس آئیں، وہ نہیں آئی۔ بادشاہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہم نے اس کو دیکھا جب سے اس نے غسل کیا ہے، کپڑے پہنے ہیں، مصلی بچھا کے قیام میں کھڑے ہو کے ایک ہی آیت پڑھ رہی ہے بار بار، اور رو رہی ہے، چہرہ بھیگ چکا ہے اس کا، رو رو کے ایک آیت پڑھ رہی ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بستی کی ہم نے مثال بیان کی جس کے پاس رزق آتا تھا، جس کے پاس مال و دولت تھی، امن تھا، سکون تھا، بادشاہتیں تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی بغاوتوں پر استعمال کیا، ہم نے ان کو خوف کا لباس پہنا دیا۔ وہ تو بار بار یہ آیت پڑھ رہی ہے، آگے یہ آیت آئے گی اگلے پارے میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کی دی ہوئی یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا اس طرح کے، بلکہ ایک کتاب پہلے بھی میں نے حوالہ دیا ہے، سنہرے اوراق، سنہرے اوراق ہے عبد المالک مجاہد حافظ اللہ تعالی، بڑے زبردست تاریخی واقعات انہوں نے لکھے ہیں۔ ایک کتاب سنہرے اوراق ہے، اور ایک اور کتاب ہے سنہرے حروف، اور اسی طرح ایک اور ہے سنہری کرنیں اور سنہرے فیصلے۔ یہ بڑے زبردست کتابیں ان کی، آپ لیں، خریدیں، میرے پاس بھی ابھی پڑی ہوئی ہے ادھر، تو ان کو پڑھیں، ان سے بڑے سبق حاصل ہوتے ہیں انسان کو، اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ان جیسے واقعوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں عبرت حاصل کرو۔ یہ وقت ایک جیسا ہمیشہ نہیں رہتا، وقت بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے جو کچھ دیا، صلاحیتیں دی، مال دی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔